डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले जो खास चर्चा हम करने वाले हैं वो है कि एसआईआर पर जो उकसावे की राजनीति, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे और इस पर खास चर्चा भी करेंगे। इसके बाद ईरान अमेरिका जंग में अपने अपने दावे। अमेरिका कह रहा है कि लक्ष्य हासिल कर लिया, 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे। ईरान कह रहा है कि वो उसने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद बात करेंगे असम में कांग्रेस के साइलेंट प्रचार की। क्या कांग्रेस वहां चुपचाप प्रचार कर रही है? असम में 9 तारीख को मतदान होना है, इसी दिन यानी कि अगले गुरुवार को। इन सभी मुद्दे पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार हुआ और तेज। आज पश्चिम बंगाल और असम में अमित शाह की रैली। नितिन गडकरी भी चुनावी रण में संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की कसरत तेज। असम में राहुल गांधी की रैली आज, जबकि केरलम के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में प्रियंका गांधी कर रही हैं प्रचार। युद्ध संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी हुई 0। प्लास्टिक और उर्वरक की बड़ी राहत। और इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में। फाइनेंस, I would request member CBIC, Mr. Sanjay Mangal, to give the updates. Yeah, good afternoon, friends. I would like to give some updates about the measures taken yesterday about reduction of duties on certain items of petrochemical sector. In the light of ongoing conflict in West Asia and the consequent disruptions in global supply chains, Government of India has decided to provide full customs duty exemption on critical petrochemical products for a certain period, for a period of 3 months till 30th June 2026. This measure has been taken as a temporary and targeted relief in order to ensure continued availability of critical petrochemical inputs for domestic industry, reduce cost pressures on downstream sectors, and safeguard supply availability in the supply stability in the country. This exemption is expected to benefit a large number of sectors which are dependent on petrochemical feedstock and intermediate products, which includes plastics, packaging, textiles, pharmaceuticals, chemicals, automotive components, and other manufacturing segments. This will also provide relief to consumers of final products. The expected or the calculated revenue loss arising out of these measures for the period of 3 months is about rupees 1,800 crore. While we are considering this revenue loss, we have to take into account that this has been calculated on the basis of the past trends, and considering the present fluid situation, the exact amount of revenue impact cannot be forecasted in that manner. I will also like to mention that while this decision has been taken, widespread consultations have been conducted with the concerned ministries, who have further consulted their individual sector, industries, and trade. And after that, the concerned products on which are considered to be critical for downstream industries and for different sectors, they have been identified, and the duty on all these products for a temporary period of 3 months has been reduced to customs duty. Has been reduced to 0. So it is expected that this will ensure more price stability for these sectors, and also improve the supply chains, and will help in continued production of these critical products. Thank you. Thank you. Now I request Mr. Love Agarwal to make his presentation. So you can start. Good afternoon, friends.
हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस प्रेजेंट क्राइसिस में डिपार्टमेंट की तरफ से क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और उससे संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है वो आपको बताना चाहेंगे। हम सबको मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारा समुद्री मार्ग है वह हमारे लिए कितना ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व का 20% क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी उस रास्ते से जाता है। इंडिया के संबंध में अगर हम देखें तो 45% हमारा क्रूड इंपोर्ट और 90% हमारा एलपीजी इंपोर्ट नॉर्मली इस पैसे से पास होता है। तो इस समय पर जबकि कुछ पोर्ट्स काफी क्लोज हो गए हैं और साथ में जब ये पोर्ट्स क्लोज होते हैं तो उससे एक एडिशनल चैलेंज हमारे लिए आता है कि यूरोप या यूएस बाउंड जो हमारा कार्गो है उसको भी लॉन्ग रूटिंग करनी पड़ सकती है। इस टाइप का चैलेंज इस समय ट्रेड की तरफ से हम लोग फेस कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा काफी विस्तृत, एक काफी डिटेल्ड रूप से हमारी एक ट्रेड एक रिलेशनशिप हमारी बनी हुई है। अगर हम देखें तो 178 बिलियन ट्रेड अगर 2024-25 की थी, जिसमें से कि 56 बिलियन के करीब हमारा वहां पर उस एरिया में एक्सपोर्ट था। तो उस समय पर जबकि जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है आपको कि चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ओमान हो, हर कंट्री के साथ हमारा एक डिटेल्ड ट्रेड रिलेशन, एक बहुत डेप्थ में होने वाला ट्रेड रिलेशंस है। तो हमने देखा कि जब यह चैलेंज हम सब लोगों के सामने आए तो कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिकली प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, एग्रीकल्चर, प्राइमरीली राइस, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड प्लास्टिक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और इसी से संबंधित अगर हम उस सेक्टोरल इम्पैक्ट को देखें तो हम पाते हैं कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काफी एक स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोगों ने महसूस किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर में जैसे पेरिशेबल हो सकते हैं, बासमती, उनके पेमेंट चैनल, उनके क्रेडिट साइकिल इम्पैक्ट हो सकते हैं। फर्टिलाइजर से जो कि हमारा यूरिया अंडर स्ट्रेस आ सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग गुड्स में हम जो कि हमारा ये गल्फ एरिया हमारा लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कैटेगरी है और ये हमारी एक की मार्केट है, तो वहां पर भी हमारे को वेसल राउटिंग से हमारे ट्रांजिट डेज, वॉरेज सरचार्ज से हमारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। जेम एंड ज्वेलरी हम आप सबको बताना चाहेंगे, नॉट ओनली हमारे लिए एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारे लिए एक सोर्सिंग हब भी है, तो वहां पर हम चैलेंज महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी, और उससे रिलेटेड हमारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं। सिमिलरली केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर हैं जो कि इस समय स्ट्रेस में आ सकते हैं। ऐसे समय पर जब ये चैलेंज हम लोग के सामने था तो जरूरी था कि हम कुछ फैसिलिटेशन मेजर्स स्टेट के लिए लेकर आए। तो उससे संबंधित मैं आप सबको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे ही ये चैलेंज हम सब लोगों के सामने आए तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का 2 मार्च को ही हमने गठन किया, जो कि एक प्रोएक्टिव वे में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम लोग कैसे एक चैलेंज को असेस करें और उसको ट्रेड के इंपैक्ट को कैसे जो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और रेलवे, इन सबसे संबंधित अधिकारियों के द्वारा हम लोग प्रतिरोज सुबह 10 बजे मिलते हैं और एक रियल टाइम इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कार्य करने के हम प्रयत्न करते हैं। अब तक करीब 20 से अधिक मीटिंग इस पर्टिकुलर इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा की जा चुकी हैं। एक फोकस सब ग्रुप, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स भी इस पर्टिकुलर एरिया में जाती हैं, तो एक फोकस सब ग्रुप हम लोगों ने बनाया जो कि पेरिशेबल कार्गो मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट कराता है, ट्रेड के साथ बात करके उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से हमने वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए एक डेडिकेटेड डेस्क का भी गठन किया है, जिसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है मंत्रालय की तरफ से और एक ईमेल है जिसमें कि हमारे सभी संबंधित जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, अगर उनको कोई भी चैलेंज होता है वो हमें बताते रहते हैं। और इसी के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलते हुए हम जितनी भी हमारी कॉमोडिटी मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेट्रोकेमिकल हो या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके कॉमोडिटी लेवल स्ट्रेस को समझते हुए उससे रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी मेरे सीनियर कुलीग ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से साथ मिलते हुए अब तक काफी कार्य किए जा चुके हैं, चाहे वो रिटर्न कार्गो रिलेटेड सपोर्ट हो, चाहे वो कस्टम क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन कमेटी हो, इस सारे कार्य को इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा हम लोग उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। इसी तरह पोर्ट्स के द्वारा एसओपीज, जैसे कि मेरे कुलीग आज आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, चाहे कार्गो हैंडलिंग हो, पेरिशेबल की हैंडलिंग हो, वेवर हो, उससे रिलेटेड कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट को देखें
तो एक्सटर्नल अफेयर से मिलते हुए हम लोग गल्फ पोर्ट अथॉरिटी से कार्गो फैसिलिटेशन का कार्य कर रहे हैं। पेट्रोलियम में हमारा इमरजेंसी सेल एक्टिवेटेड है, जो कि आपको डेली उसके बारे में बताया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हम बैंक और इंश्योरेंस के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। रेलवेज की तरफ से मिलते हुए हमने कॉनकोर और इंटरनल इनलैंड कंटेनर डिपोज के साथ कार्य किया है, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरनल मूवमेंट विद इन देश हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकें, और पर्टिकुलरली जो हमारे स्ट्रैंडेड एक्सपोर्ट्स थे, कंटेनर्स थे, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप के तहत कार्य करते हैं, और रिजर्व बैंक, जैसे कि आप सबको अवगत है, पिछले 2 दिनों में ही कई सर्कुलर इश्यू किए गए हैं, जिससे ट्रेड को, चाहे वो जो क्रेडिट पीरियड है उसकी समय अवधि, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट की समय अवधि बढ़ाई गई है। इसी तरीके से पैकिंग क्रेडिट जो है उसमें लिक्विडेशन उस क्रेडिट का हम ऑल्टरनेट सोर्सेज के द्वारा कर सकें या डोमेस्टिक सेल के द्वारा कर सकें, उससे रिलेटेड एग्जम्पशन दी गई हैं। इसी समय पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कुछ की इंटरवेंशन स्टेट को सपोर्ट करने के लिए किए गए हैं। आप सबको अवगत है, कुछ स्कीम्स जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड, इन स्कीम के द्वारा हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करते हैं, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और उसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है इनपुट्स का, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। ऐसे समय पर उसकी समय अवधि को, जो उसका एक पीरियड होता है, उसको हमने 3 महीने, क्योंकि हमारे को एक्सपोर्ट कम्युनिटी से यह रिक्वेस्ट आई थी, तो उसको बढ़ाया गया है कि वह 3 महीने की अधिक अवधि में भी अपना एक्सपोर्ट कमिटमेंट फुलफिल कर सकते हैं। कोई लाइसेंस या कोई एडिशनल पेनल्टी पे नहीं करना है, जिससे कि उनको फायदा हुआ कि उनकी सप्लाई चेन बनी रहे, उनके शिपिंग डिसरप्शन के समय में जो डिलेज हैं वो मैनेज कर सकें, और साथ ही उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी को हर्ट ना हो। इसी तरह से हमारी एक मुख्य स्कीम है जिसको हम रॉटेप कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जितने भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल टैक्सेस होते हैं, जो कि किसी और स्कीम में रीइंबर्स नहीं होते, लेकिन अगर वह एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको सरकार रीइंबर्स करती है। उसमें जिस फरवरी के समय में उन टैक्सेस का परसेंटेज घटाकर 50% किया गया था, लेकिन जब ये वॉर की सिचुएशन हम लोगों के सामने आई तो उसको हमने 23 मार्च से फिर से रिस्टोर किया, जिससे कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो राइजिंग फ्रेट, इंश्योरेंस या इनपुट कॉस्ट के चैलेंज को जब अगर वो इस समय मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी और वो ग्लोबल ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक वर्किंग कैपिटल, जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि प्रति एक्सपोर्टर को एक समय अवधि दी जाती है जिसमें कि वो अपना एडवांस ऑथराइजेशन या जो ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत अपने एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा करे, और उसके पूरा होने के बाद वह अपनी जो वर्किंग कैपिटल की बैंक गारंटी उसने प्रोवाइड की है, उस पर्टिकुलर बैंक गारंटी को डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो हमने इस समय पर एक ड्राइव ली और 12,000 एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स को पिछले 1 महीने में इशू किया गया, जिसके द्वारा ब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल हमारे एक्सपोर्टर्स के पास फिर से अवेलेबल होगी, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यूटी और री इन्वेस्ट कर सके नए ऑर्डर्स में। वाइल ये सारे कार्य जब किए जा रहे थे, इसी तरह जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया, उसमें उनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड भी हमने 1 माह की अवधि से बढ़ाया, जिससे कि हमारे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को उनके एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्दीनेस बैंक्स के साथ बनी रहे, और हम एक पर्टिकुलर, जैसे आज भी वर्ल्ड लार्जेस्ट कट एंड पॉलिश डायमंड हब के रूप में अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह से हमारी एक और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में हम अपेडा कहते हैं, उसने हमारी तरफ से एक एक्सपोर्टर्स की हेल्पलाइन को एस्टैब्लिश किया। मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली पेरिशेबल्स और बासमती राइस, मीट और पोल्ट्री के लिए उन्होंने एयर कार्गो ऑपरेटर्स के साथ और शिपिंग लाइन के साथ कंटिन्यूड मूवमेंट ऑफ कार्गो, उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी वे प्रतिरोज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही बासमती एक्सपोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट, उसकी अवधि को भी 45 दिन बिना कॉस्ट के बढ़ाया गया। इसी के साथ ही वह, जैसे इससे पहले भी आपको हमने बताया कि वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट को भी एक्सपोर्टर्स के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बनी रहे गल्फ एरिया में, क्योंकि वह हमारा एक मेजर डेस्टिनेशन है। और साथ ही शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर डैमरेज कॉस्ट हो या ऑल्टरनेट पोर्ट्स का या यूएई या ओमान सर्विस रूट हो, उसको भी हमने एस्टैब्लिश किया है। इसी के साथ ही एक बहुत जरूरी था कि जब इस समय पे हम अपने एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा दे सके, एक नई स्कीम डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई।
इसके बारे में बताना चाहेंगे। इस स्कीम को हम रिलीफ नाम बताते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इस स्कीम को डिपार्टमेंट के द्वारा 19 मार्च को लागू किया गया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक इकोसिस्टम अप्रोच से हम एक्सपोर्ट को देश में बढ़ावा दें, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेड की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो हमारे एक्सपोर्टर्स उनका कॉस्ट बर्डन कम होगा, उनको एडिशनल रिस्क कवर मिलेगा, उनकी सप्लाई चेन्स बनी रहेंगी। और पर्टिकुलर फोकस है कि हम मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करें, तो उसके लिए हमने इस स्कीम को, इसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट कवर करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने, जब यह वॉर शुरू हुई तब ऑलरेडी एक उन्होंने इंश्योरेंस कवर उसमें ईसीजीसी के द्वारा लिया हुआ था। तो नॉर्मल समय में जब आप ईसीजीसी कवरेज लेते हैं तो 80 to 85% आपका रिस्क कवर किया जाता है। लेकिन इस स्कीम के कंपोनेंट के द्वारा हमने उन पर्टिकुलर केसेस में उसका कवर बढ़ाकर 100% किया है। यानी कि चाहे वॉर हो, चाहे पॉलिटिकल रिस्क लॉसेज हो, कोई भी लॉस अगर उस केस में जो पर्टिकुलर हमारे देश से कंसाइनमेंट उस पर्टिकुलर टेरिटरी में गए हैं 14 फरवरी से 15 मार्च तक, उन पर्टिकुलर एक महीने की अवधि में जो भी हमारे कंटेनर हो, चाहे वो फुल कंटेनर लोड हो, चाहे लेस देन कंटेनर लोड हो, चाहे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हो, उन पर्टिकुलर कंटेनर्स को हम, अगर उन्होंने पहले से ईसीजी कवरेज लिया है तो उसको 100% ईसीजी कवरेज हम कवर करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एयर बिल हो या बाय शिपिंग हो, दोनों को कवर किया गया है। इसी के साथ ही जो 11 देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन, यहां जाने वाला जो हमारा कार्गो है या इस पर्टिकुलर एरिया से जाकर किसी और दूसरे देश में जाने वाला कार्गो है, दोनों को हमने कवर किया है। और इसके द्वारा हम उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स को जो कि उनका जो कार्गो निकल चुका था जब वॉर शुरू हुई, उसको हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरे कंपोनेंट में हम अभी अपने जितने एक्सपोर्टर्स उनको कह रहे हैं कि जब आप अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक इंश्योरेंस कवर के थ्रू आगे बढ़ें और उसके लिए आप नया ईसीजीसी कवर ले सकते हैं। यहां पर भी हमने ईसीजीसी से बात करते हुए स्टैंड अलोन पॉलिसीज का एक गठन किया है, जिसमें अगेन एयरवे बिल और कार्गो, शिपिंग कार्गो को हमने कवर किया है। यह जो कवर है आने वाले 3 महीनों यानी कि 16 मार्च से 15 जून तक जो भी कार्गो उस पर्टिकुलर प्रांत में जाता है, चाहे वो इन देशों को जा रहा हो या इस एरिया के द्वारा पास हो रहा हो, उसको कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 महीने अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में अगर अपना चाहे ट्रांसशिपमेंट हो, जो एक्चुअल पर्टिकुलर इस एरिया के लिए कवर्ड एक्सपोर्ट हो, तो उसको हम कवर करते हैं। प्रीमियम ईसीजीसी द्वारा बढ़ाई नहीं जाएगी, प्रीमियम वहीं पर लिमिट की जाएगी, कैप की जाएगी। लेकिन जो इंश्योरेंस कवर है उसको बढ़ाकर हम 95% करेंगे। और जो भी एडिशनल अगर ईसीजीसी को पेमेंट करना है अपने रेगुलर कवर के अलावा, उसको गवर्नमेंट पे करेगी। तो यह हमारा दूसरा कंपोनेंट है जिसमें हमने आने वाले एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई है। तीसरा कवर था कि कुछ ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने उस समय पर एक्सपोर्ट किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने ईसीजीसी या कोई इंश्योरेंस कवर ना लिया हो। अब ऐसे समय में जब वॉर हुई और उनको एक सडन चैलेंज फेस करना पड़ा, और हम सबको पता है चाहे वॉर रिस्क सरचार्ज हो, चाहे इमरजेंसी कंटेनर सरचार्ज हो, चाहे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम हो, उससे संबंधित अगर उनका जो भी एडिशनल कॉस्ट है उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए, पार्ट कवर करने के लिए यह स्कीम को बनाया, इस कंपोनेंट को बनाया है। इसमें 2 तरह के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, 2 तरह की ट्रेड में डील्स होती हैं। एक होती है सीआईएफ, जिसमें कि हम अगर उनका एडिशनल फ्रेट या इंश्योरेंस बर्डन जो भी है उसका 50% तक बियर करते हैं। और दूसरी फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वहां पर अगर उनको अपने जो इंपोर्टर है वहां से रियलाइजेशन में कोई कमी हुई, उसका 50% तक हम कवर करेंगे। यहां मुख्यतः हम आपको बताना चाहेंगे कि यह स्कीम केवल एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने लागू की है। और इसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी एक्सपोर्टर्स को इसका लाभ मिले और पर्टिकुलर एक एक्सपोर्टर तक ना सीमित रहे, तो इसके लिए हमने ओवरऑल सीलिंग भी जो है 50 लाख रुपए प्रति एक्सपोर्टर एक लिमिट फिक्स की है। और इसमें भी हम ट्रांसशिपमेंट और उस पर्टिकुलर प्रांत में जाने वाले सभी जितने भी हमारे शिपमेंट है उनको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीम हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने एक्सपोर्टर कम्युनिटी से कि प्लीज इस स्कीम का आप फायदा उठाएं
और इंश्योर करें कि हम अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से ओवरऑल अप्रोच आप लोगों को बताना चाहें तो हमारे 3 बेसिक एफर्ट्स हैं। पहला एफर्ट है कि हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कोऑर्डिनेट करते रहें, जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने अभी बताया आपको। अगर देश की सप्लाई चेन, देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, तो चाहे उसके लिए ड्यूटीज को क्रिटिकल रॉ मटेरियल में कम करना पड़े, चाहे इसेंशियल इनपुट में कम करना पड़े, तो हम डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। चाहे कोई ट्रेड रिलेटेड प्रोसेसेस हो, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, उसमें कोई रिलैक्सेशन देनी हो, उसका हम कार्य करें और हम अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी पर कार्य करें। दूसरा एफर्ट हमारा है कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल को बनाए रखें और उसके लिए जो भी हमारे पर्टिकुलर कार्गो हैं जिसमें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में कोई चैलेंज आ सकता है, तो हम सेंसिटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करें और उसमें चाहे हमारे को प्रमोशन रिलेटेड कोई कार्य करना पड़े अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, चाहे देश में अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़े, हम उससे रिलेटेड कार्य करेंगे। और तीसरा और सबसे मुख्य है, क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो हम रेगुलर कम्युनिकेशन अपने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा कम्युनिटी से बनाए हुए हैं, डोमेन मिनिस्ट्री से बनाए हुए हैं, और साथ ही जो हमारी ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ट्रेड रेमेडी मेजर्स हैं, उससे हम देश के एक्सपोर्ट की कंटिन्यूटी बनाए रखने का एफर्ट करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Now I request Sujata, Petroleum Ministry updates. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप हैं। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसीडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइसेस आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। लगभग 95% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और लगभग 85% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और उसमें
ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो वो पीएनजी सरेंडर करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि एक पोर्टल है mypngd.in। इस पोर्टल पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,400 लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। डोमेस्टिक एलपीजी को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रिफाइनरीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 9 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया गया, जिसके द्वारा C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटीन सम्मिलित हैं, को एलपीजी पूल में डाइवर्ट करने की बात की गई। किंतु अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से प्राप्त रिक्वेस्ट्स के आधार पर CHT को की एक कमेटी बनाई गई है और उसका काम है कि अगर कुछ एलपीजी मॉलिक्यूल्स को अगर डाइवर्ट करना है तो वो कितना करना है, इन सभी डिपार्टमेंट से बात करने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल सप्लाईज को लगभग 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, कैंटीन, सब्सिडाइज कैंटीन, स्टेट रन कैंटीन को प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को देने की भी बात की गई है, प्रायोरिटाइज करने की। इस संबंध में लगभग 23 मार्च से लगभग 4,30,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। कुछ इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम इसमें वी आर लुकिंग इनटू द मैटर दैट हाउ टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर सिस्टम। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 14 मार्च से लगभग 60,000 टन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को दी गई है। स्टेट्स ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसा मैं कहती आई हूँ, बहुत अहम रोल है और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रेड्स जारी हैं। कल भी लगभग 2600 रेड की गई, लगभग 700 सिलेंडर भी सीज किए गए। इसके अलावा एक रिसेंटली एक जगह पर हैदराबाद में ग्रेवयार्ड के अंदर भी लगभग 400 सिलेंडर्स मिले। वहाँ पर 10 लोगों को पकड़ा गया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह कल रात सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही थी कि मिरांडा कॉलेज में कुछ छात्राएं एजिटेशन कर रही हैं क्योंकि एलपीजी का इशू है। जब हमने इसकी तहकीकात की तो हमने पाया कि एलपीजी शॉर्टेज वाज नॉट एन इशू एट ऑल एंड इट वाज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड। इसी तरह कुछ टीवी चैनल्स में भी कुछ न्यूज़ आई है। दे आर ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शंस विल बी टेकन एज पर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। PSU ऑफिशियल्स को भी डायरेक्ट किया गया है कि जो उनका सिस्टम है सरप्राइज इंस्पेक्शन का, उसको स्ट्रेंथन करें और अगर कोई भी केस ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग का मिलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लगभग 600 शो कॉज नोटिस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए हैं और लगभग 18-19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा देशवासियों को कहना चाहूँगी कि सप्लाईज पर्याप्त है, कृपया आवश्यकता अनुसार क्रय करें और पैनिक बाइंग से बचें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now I would request Ministry of Ship to give the updates. Good afternoon. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to closely monitor the evolving situation in West Asia region. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in the past 24 hours and the situation remains stable with respect to Indian vessels. A total 18 Indian vessels with 485 Indian seafarers continue to remain in the Western Persian Gulf region. The Directorate General of Shipping, that is DG Shipping, in coordination with ship owners, RPSL agencies and Indian missions is actively monitoring the situation.
The DG Shipping Control Room remains operational 24/7 and has handled a cumulative of around 4,900 calls and over 10,000 emails since activation, including 116 calls and 335 emails in the past 24 hours. DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 975 Indian seafarers so far from the region, including 11 in the last 24 hours. Post operations across India remains normal, with no congestion reported in the past 24 hours. State maritime boards of Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala, Andhra Pradesh, and Puducherry have confirmed smooth functioning of the ports under their administrative control. The ministry continues to maintain close coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions, and maritime stakeholders to ensure seafarer safety, welfare, and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you. Now, Randhirji, MEU. Good afternoon, friends. I would like to update you on our Indian nationals in in Iran, as we have kept you updated with details in regard to our nationals being able to, how our embassy is facilitating their movement from Iran into Azerbaijan and Armenia. In that regard, I have an update. So far, we have facilitated 1,200 Indian nationals, which includes 845 Indian students, to exit Iran via the land border into Armenia and Azerbaijan. Of these, 996 crossed over into Armenia and 204 into Azerbaijan. Over and above, we have also relocated several Indian nationals to safer places in Iran in the last few days. We also thank the authorities in Armenia and Azerbaijan for their support in facilitating the safe transit of Indian nationals from Iran. Thank you. Asimji. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and West Asia region, ensuring the safety, security, and welfare of the large Indian community in the region remains our highest priority. To support Indian nationals and their families, a dedicated special control room in the ministry is operational. We continue to be in regular touch with the state governments and union territories to keep them informed of the latest advisories and to coordinate with our embassies and consulates. Our missions and posts across the region continue to operate round-the-clock helplines and remain actively engaged with the large number of Indian community organizations, associations, and Indian companies across the region. Regular advisories are being issued with updated information for our nationals, students, seafarers, and resident Indian communities. Our missions remain in close touch with the local governments. They are proactively addressing issues being faced by Indian nationals, including facilitation for visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where airspace restrictions apply, and providing logistical support wherever needed. Welfare of Indian students in the Gulf countries is of high priority for us. Every effort is being made to ensure that students' academic year is not impacted. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, CBSE, ICSE, Kerala boards, and for JEE and NEET examinations with the National Testing Agency to address concerns of students. Our missions are also in continuous contact with Indian crew members on vessels across the region to ensure their welfare. They continue to provide support to them, including coordination with local authorities, extending consular assistance, facilitating communication with their families in India, and facilitating requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 624,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 90 flights are expected to operate from UAE to various destinations in India today.
Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating the travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. In an attack yesterday in Al Quwain in UAE, an Indian national was injured and is currently receiving treatment at a local hospital. Our consulate is extending all assistance to the injured Indian national. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. Yes, first row, 208, 16 and 24. Hi, Sukalp from the Indian Express. First question is to Sujata ma'am. Ma'am, with the ATF price cut, not the price cut, sorry, with the partial pass on of the price, could you help us with what would be the current under recovery level on ATF for OMCs for domestic flights? And also, is there a plan that the government is working on supporting the OMCs, since they're also incurring heavy under recoveries on petrol, diesel, as well as domestic LPG? Second question to Kandhari sir. There's a bit of a confusion regarding the SAED that was imposed on diesel and ATF exports last week. If you could, sir, please clarify whether that applies to Reliance Industries Limited's SEZ refinery. Whether exports from the SEZ refinery are also going to be taxed. And third question to Mangal sir. This vessel that is purportedly carrying Iranian crude is its AIS signals show that it's now very close to Gujarat. So if you could give us some sort of a confirmation whether that's indeed coming to India. Thank you. Thank you for letting me ask a question. I'm Tvesh from Economic Times. So there have been some reports that 3 Indian vessels carrying defense-grade steel were on their way to Israel and they have been intercepted in Italy. Can we please get some official confirmation or denial on this? First row. Good afternoon, I'm Nikun from Reuters. My question is to Mr. Agarwal. Sir, in the presentation you made under the sectoral impact assessment, it said that payment channels have been impacted in key markets. So could you elaborate how our payment channels have been impacted and how are payments being undertaken currently? 46, second row, 46. असीम मनचंदा CNBC आवाज से सुजाता मैम से क्वेश्चन है मैम अभी आपने पेट्रोल और डीजल के अंडर रिकवरी का जिक्र किया पेट्रोल में 24 की अंडर रिकवरी है और डीजल में 104 की अंडर रिकवरी है तो अगर जब हम क्रूड को रिफाइन करते हैं तो दोनों में पेट्रोल और डीजल सेम मात्रा में निकलता है तो व्हाई इट इज बेंचमार्क टू सम दुबई और सम ओमान टू कीप सो मच अंडर रिकवरी सो हाई 24 and 17. Hi, Pallavi from Informist Media. My first question would be how long before India resends LPG ships for refilling? And second question is on lines of what Sukalp has already asked. How do you see OMCs managing the financial impact of not fully passing on the prices of ATF to domestic airlines? Okay, in the first row, 46 has come. We can take the first row here again. Hi, thank you. A couple of questions. I'm Azadi from PTI. One for Sujata ma'am. You talked about
polypropylene being made available to petrochemicals and other sectors. But I understand the ministry has already passed an order last evening for making available polypropylene. Will it impact LPG production, and how much of polypropylene is being diverted for that? One. Second question to CBIC. What is the impact of the SEZ order that was issued yesterday, revenue implications for that as well? Thank you. Okay, we'll take 17 and 49 and then we can have the answer. Thank you. I'm Anil Honda. Two questions. One man on the ethanol blending. Is the ministry thinking of reviewing the percentage of ethanol blending in petrol? And second, on the currency volatility, if you could give some further inputs on how you're going to control the price. Hi, my name is Aishwarya. I'm from Business Today. My first question is to Mr. Love Agarwal. So you mentioned that the ministry has been holding consultations with the industry for the past 20 meetings. If you can talk to us about the overall quantum in terms of export and imports that is estimated, that has been hit. If you can name some of the biggest hit industries, and what is the quantum of the export and import, if there are any figures. Also for Sujata ma'am, I have a question on ATF. What is the effect on the pricing for some of the cargo carriers? And there's some confusion on that, if you can get some clarity further on this. I think we have one more hand, 47. Ma'am, just one more question for Sujata ma'am, last question. Ma'am, as far as India's strategic reserves are concerned, there was, you had clarified that India has 60 days plus 9.5 days of SPR. Considering the ongoing situation, has India thought of increasing its SPR in the future to avoid any such calamities? Because this is one of the lowest SPR reserves in the world. So any answer on that? 47 and then 266. मैं सुरेंद्र पंडित पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल असीम सर से है। सर, इस समय ना देश में हज यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही, क्या इस सिचुएशन में हज यात्रा होगी? Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from The Hindu. Question to Randhir sir. The other day we had we had a televised thing coming in from US President Donald Trump, and there was a retort from Iran as well. So how are we looking at that situation as of now, and are we looking to place in any kind of mechanisms to safeguard ourselves against the constant retort that's happening? I think we'll begin the answers from Sujata. We'll begin from you. Yeah. So regarding strategic reserve, yes, it is under very active consideration. What best could be done, and we will inform you at the appropriate time also. Regarding crude and the pricing, MS and HSD, and why it is linked to certain benchmarks. This is a standard way of calculating, and this is also a system of introducing the most efficient way of pricing. So what is the price at which the world is producing and selling, and what is the price at which you are able to sell? So that's the short answer of this. LPG, yes. You know that we are in a war situation and 60% of our supplies are affected. And precisely to protect the domestic consumption, on 9th March it was decided that not only the LPG production will be increased, but it will be used for the domestic consumers. But then there are certain other sectors which also need some of these molecules, and thereby this decision has been taken. And there will be an impact on the supplies available for domestic, but it will be ensured, and it has been ensured that although the supplies to the domestic consumers are not affected, you just heard it is told that duties have been reduced on some of the petrochemical products,
I hope things will, I mean, I'm very, very hopeful it will all, I mean, give very good results to us. Ethanol blending. Ethanol blending, you know that we have already reached 20%, and it has its own merit in terms of giving us better energy security, reducing import dependency, and for further increase, it's a policy decision, and it will not, I mean, I will not be able to comment it right now. So whenever the decision will be taken, it will be informed. Right now, we are having a 20% blending. ATF under recoveries are there because you know that it has been only a partial increase. The figures, what will be the quantum, I am not having it right now. Petrol and diesel also, there is an under recovery, but I want to tell you that the highest priority for Government of India at this moment of time is to ensure supplies to the consumer in the country. Thank you. I cannot say it right now. Thank you. We can have response from Shipping Ministry. As you know that we are coordinating with Ministry of PNG for bringing the energy vessels from the west side of Strait of Hormuz. And as regard to this vessel, about this having Iranian oil, we do not have any specific information about this. Thank you. There was a question about whether the special additional excise duties and the additional excise duties RIC are applicable on special economic zones. As per judicial pronouncements on this issue, the special additional excise duty and additional excise duties are not applicable on special economic zones. For the next question on the SEZ to DTA, my senior colleague will answer. Regarding the question of revenue impact of this new exemption notification for DTA clearances by SEZ units, I would like to say that you take a look at it in this manner, that this measure has been taken to allow SEZ units to utilize their capacity in a better manner and to make some clearances, some additional clearances to DTA units, which they could not export because of trade disruptions. And for that, some concessional duty has been given. So if you say, look at the revenue impact, it is going to be additional DTA clearances, and there will be some duty which will be coming, while there simultaneously is a concession on duty vis-a-vis the present rates. So in that sense, no revenue impact can be calculated for that as such. There is some additional duty and there is some concession. So net impact cannot be analyzed at this stage, as we do not know what will be the total DTA clearances because of this exemption. Thank you. जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि जब कोई वॉर या इस टाइप के चैलेंजेस होते हैं तो जो पेमेंट चैनल्स हैं वो स्ट्रेस में आते हैं और साथ ही क्रेडिट साइकिल इम्पैक्ट होता है। तो ये हम सबको पता है कि कोई पेमेंट के डिलेज हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। आपने कोई एक्सपोर्ट किया, आपका एक्सपोर्ट अगर डिले से पहुंचा और वहाँ पर उस पर्टिकुलर इम्पोर्टर ने कोई डिडक्शन की, तो उस टाइप के चैलेंजेस इस टाइम ट्रेड फेस कर रही है। और इसी के लिए हमने आपको बताया था कि जब हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को किस टाइप की एडिशनल रिलैक्सेशन या किस टाइप का सपोर्ट इन कोऑर्डिनेशन कस्टम्स एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर दे पाएं, ताकि उनका ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये हमने आप लोगों को बताया था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आपने पूछा कि इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ओवरऑल क्या होगा, तो ये हम सबको पता है कि इट इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि जिस टाइप की हमारी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है इन द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमारा ट्रांसशिपमेंट भी काफी क्वांटिटी में होता है, तो यह एक्सपेक्टेड है कि ट्रेड डेफिनेटली कोई ना कोई एक चैलेंज हम मेजर लेवल पर फेस कर रहे हैं। और उसके लिए ही हमने आपको दिखाया था कि चाहे वो हमारी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हो,
चाहे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, मरीन प्रोडक्ट्स हों, हमारे मीट प्रोडक्ट्स हों, इंजीनियरिंग गुड्स हो, केमिकल्स हों और इवन एनर्जी सेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए काफी स्ट्रेस है और उसी के लिए उसको ईज करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारा उस पर्टिकुलर रीजन में डेप्थ एंड ब्रेड्थ of trade relation is very high. So that is why obviously any challenge in that particular area will have a impact in terms of कि हम उसको कैसे मैनेज करें, उसमें अपने एक्सपोर्टर्स को हम कैसे सपोर्ट करें ताकि वे अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएं। There was a question on the annual Hajj pilgrimage. I can inform you, like every year, preparations are ongoing for the Hajj pilgrimage in 2026. Our consulate in Jeddah and our embassy in Riyadh are working in close coordination with the Ministry of Minority Affairs, the Saudi Ministry of Hajj and all concerned agencies for the preparation this year. We will keep you informed in this regard. Thank you. Randhirji, you have to add something? Okay. We have missed something? Yeah. From ship. No, we do not have any information on this. All right then. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें कि देश में जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है उससे उपजी स्थिति पर देश की क्या तैयारी है, आपूर्ति किस तरह से बनी हुई है, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया गया। कुछ बड़ी बातें क्या हैं कि देश में जो एलपीजी की आपूर्ति, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है, किसी तरह की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं है घरेलू एलपीजी में। साथ में सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। जो हाइड्रोकार्बन पदार्थ हैं उस पर सीमा शुल्क में सरकार ने छूट दी है। इससे पहले कच्चे तेल में भी सीमा शुल्क में सरकार ने छूट दी थी। तो ये सभी कदम सरकार उठा रही है। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इस वक्त के एजेंडों पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो चुनावी दंगल चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुरू की गई सियासत अब सड़क जाम और उग्र प्रदर्शन तक पहुंच गई है। पिछले एक साल से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सुनवाई प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को भी धमकाने का सिलसिला तेज हो गया है। मालदा जिले में एसआईआर एडजुडिकेशन के बाद नाम काटने को लेकर उपद्रवियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर लिया और लगभग उनको कई घंटों तक बंधक बना लिया था। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ग्रुप कॉल भी की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद देर रात 2 बजे तक इस मामले की निगरानी करते रहे थे। कल की बात है ये। आज सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा उन्हें इस घटना को लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र भी मिला है। सीजेआई ने कहा यह बहुत चिंता की बात है कि चीफ जस्टिस द्वारा पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देने के बाद भी वो घटनास्थल पर बहुत देर से पहुंचे। सीजेआई ने कहा यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश है, बल्कि ये इस कोर्ट को भी चुनौती देती है। सीजेआई सूर्यकांत ने ममता बनर्जी सरकार के वकील से कहा है कि आपके राज्य का हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को फटकार लगाते हुए कहा है कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? कोर्ट ने इसी से कहा कि कल की घटना की सीबीआई या फिर एनआईए द्वारा जांच कराकर इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपे।
मालदा की घटना से ममता बनर्जी ने हालांकि अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका मानना है कि अब मेरे हाथ में तो प्रशासन है नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मेरे हाथ से निकलकर निर्वाचन आयोग के पास दे दी गई है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, बीडीओ, एसडीओ, आईसी सब बदल दिए गए हैं। मुझसे सब कुछ छीनकर निर्वाचन आयोग यहां सुपर राष्ट्रपति शासन चला रहा है, यह ममता बनर्जी का कहना है। एक तरफ गृह मंत्री और दूसरी तरफ राज्यपाल को साथ लेकर। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में लोगों को सड़क पर उतरने को क्यों उकसा रही थी। इस बीच उधर भवानीपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। शाह ने कहा, मैं अभी 15 दिन तक बंगाल में ही रहने वाला हूं। हर जगह एक ही आवाज है कि इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दो। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई इस बार तय है। रक्त रंजित चुनाव का पश्चिम बंगाल में पुराना इतिहास रहा है। मालदा की घटना चुनाव आयोग की बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी हर हाल में एसआईआर के इर्द गिर्द ही मुद्दे को रखना चाहती है। अब देखना यह कि बीजेपी आम लोगों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे जाती है और यह मुद्दा जनता कैसे लेती है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पर सफाई जो आया, उन्होंने कहा अब तो कानून व्यवस्था मेरे हाथ में है नहीं। सुनिए उनकी बात। ল অ্যান্ড অর্ডার টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে, আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে রাজ্যপালকে ডেকে নিয়ে। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है तो अब जनता ही टीएमसी को जवाब देगी और हटा देगी। कलियाचक की जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कलियाचक में पुलिस थाना जलाया गया था। पुलिस बेचारा भागे थे लुंगी पहन करके। वहाँ 10-5 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है। हजारों की संख्या में घुसपैठिया आते हैं, सोना आता है, गाय तस्करी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा माफिया वहीं है। हमेशा कानून व्यवस्था की समस्या रहती है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाएगा। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा है कि जल्द ही जनता टीएमसी को टाटा बाय बाय कर देगी। उत्तर बंगाल चाहिए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। तो जनता जिसको चुनेगी उसको लाएगी, जिसको नहीं चुनेगी उसको टाटा बाय बाय करेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस बीच में इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं, जैसे मालदा में घटी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। साथ में हमारे साथ मोहम्मद एरशामुल हक साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं, स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद जी, जिस तरह की घटना मालदा में घटी है और उस घटना के बाद सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी आई है पश्चिम बंगाल को लेकर, ये मुझे लगता है चुनाव होंगे, चुनाव का नतीजा बाद में आएगा, ये एक अलग बात है। ये तो अभी जिस तरह की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्य न्यायाधीश ने, प्रधान न्यायाधीश ने की है, सबसे पहले तो मुझे लगता है उसी के समाधान की जरूरत है। सबसे पहले तो उसी पर बात होनी चाहिए। विनोद जी। लाल जी, सच में ये जो घटना है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। लोकतंत्र की कलंकित करने वाली घटना को आप इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि आप ये देखिए कि न्यायिक अधिकारी जो हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, उसमें 3 महिलाएं, और उनको 8 घंटे से ज़्यादा एक तरह से बंधक बना के रखा गया था। ये एक तरह के, आप ये सोचिए कि मालदा जैसे इलाके को ऐसा किसने बनाया कि ये 7 जजेज इसलिए वहाँ पे जो एडजुडिकेशन की केस सुनवाई एक साथ कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो अलग अलग जगह पे नहीं कर सकते हैं।
ये हालात देखिए और उनको कैसे निकाला गया, ये भी आप इस घटना की चश्मदीद अपने इसमें विजुअल में देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए कि उस पर पत्थरबाजी लगातार होती रही थी। ये किसने बनाया ऐसा? किसने इन चीजों के लिए वहां पे लोगों को इंस्टिगेट किया, खड़ा किया कि वोट कटने से क्या किसी की नागरिकता खत्म हो जाती है? वोट कटने से क्या किसी को राशन मिलने का बंद हो जाता है? उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? तो ये सीएम ममता बनर्जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस तरह का वायलेंस के लिए ये किसने ये ग्राउंड तैयार किया है। आज सारे लोग जानते हैं कि एसआईआर के प्रक्रिया में अब इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधी जुडिशियल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है उसके जजेस सुनवाई कर रहे हैं। जज जो लिस्ट नाम दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट बना के प्रकाशित कर रहा है। इतना सा रोल सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। बात। और लगातार आप इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, लोगों के सामने लोगों को आप एक उसका दुश्मन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। वो सीधा कब्जा चाहती है। बिल्कुल। तो सीजीआई ने जो कहा कि एडवोकेट जनरल को कहा कि आपके राज्य में कम से कम हर अधिकारी राजनीति की ही भाषा बोलते हैं जी, क्या हम नहीं जानते हैं कि इसके पीछे कौन है? ये सीजीआई कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये आज ममता बनर्जी चाहे जो भी ये बहाना ले लें कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, ये हर इलेक्शन में, अभी तमिलनाडु के सीएम क्या कहेंगे, वहां कोई वायलेंस हो जाए तो क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं है। अभी असम के सीएम क्या कहेंगे कि वहां कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, वो कहेंगे कि हम कुछ नहीं है। हर जगह इलेक्शन कमीशन की ये व्यवस्था है कि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में सारे अधिकारी काम करते हैं। तो क्या ममता बनर्जी चाहती है कि बस उन्हीं का सब कुछ चले और इलेक्शन कमीशन का वहां कुछ भी नहीं चले? तो ये शर्मनाक हालत को ये चैलेंज है कि जब आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल से सीधे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को चुनौती दे रही है। सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। सौरभ, कल की घटना पर अभी तक क्या कुछ हुआ है? क्योंकि जिस तरह से देर रात तक प्रधान न्यायाधीश खुद मॉनिटर कर रहे थे, कल देर रात तक, आज बहुत ही सख्त टिप्पणी आई है मालदा की घटना को लेकर। क्या कुछ हो रहा है घटना में, अभी तक क्या अपडेट है और क्या कहना है विशेष रूप से टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का? अपडेट देता हूं पहले, लेकिन एक 27 सेकंड का एक वीडियो आया है जी, उसका मैं ऑडियो आपको सुनाता हूं। ऑडियो आ जाएगा। Please communicate it to register, sir. Our pilot is never there. Our pilot sir has suffered accident due to these hurdles. Our pilot is never there. He has suffered accident due to the hurdles of bamboos and the hurdles and the bridge. We are traveling alone. I could take care of my children. Take care of my children if something happens to me. ये महिलाएं, मैं वही कहने वाला था कि इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये महिला न्यायिक अधिकारी की आवाज थी? हाँ बताइए। ये महिला न्याय अधिकारी की आवाज थी। वो जब कन्वॉय से जा रही थी, जब उनको रेस्क्यू करके लेकर जा रहा था, रास्ते पर बम्बू था, तो वो बम्बू रोड से ब्लॉक किया गया था, लेकिन उसको जब क्रॉसओवर करने के गया था गाड़ी, तो बांस से लेकर गाड़ी से पीटा गया, पत्थरबाजी हुआ, पथराव किया गया। और उस हमारे पास विजुअल है, जरा बताइए अपने प्रोड्यूसर को। हम प्रोड्यूसर से कहेंगे कि जरा वो विजुअल भी साथ साथ दिखाते रहे। हाँ आप बोलिए सौरभ दत्ता, बोलते रहिए आप। बम्बू और पत्थर की मार से, पथराव से जो महिला न्यायाधीश थे, उनके न्यायाधिकारी थे, उनके पायलट को यानी ड्राइवर को चोट लगा। वही वो बोल रही है कि मेरा जो पायलट है सिवियरली इंज्योर्ड हो चुके हैं, सिवियरली इंज्योर्ड हो चुके हैं, उनका हालत खराब है। और ये हाईकोर्ट के किसी ऑफिसर्स को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हाईकोर्ट टेक केयर करने, उनका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यानी वो बच नहीं, ये बात कह रही है महिला न्यायिक अधिकारी। हाँ, और अभी इसी के चलते ये जो बात कल हुआ, इसी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कड़ी शब्द से पूरे घटना का निंदा किया। और सीधे तौर से जो बात कुछ देर पहले विनोद जी भी बता रहे थे, वो सारी बातें आज उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में बोले। और अभी 18 अरेस्ट हुए हैं। अभी गणेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो राज्य के एडीजी सीईओ से
ओवर द वीसी कर रहे हैं, बैठक चल रही है। सौरभ दत्ता जो कह रहे हैं आप 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन है ये लोग, इसके बारे में कुछ पता चला? ममता बनर्जी कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम क्या करें। ये 18 लोग कौन गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग शामिल थे इस घटना में? देखिए सबकी तो आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ, लेकिन ये पता चला कि एक आईएसएफ कैंडिडेट है, एक आईएसएफ कैंडिडेट है, यानी इंडियन सेकुलर नौशाद सिद्दीकी का जो पार्टी है, वो फुरफुरा शरीफ वाले जो मौलाना साहब है उनकी पार्टी, और बाकी सब 17 है। आगे चल के पता चलेगा कि कौन कौन है, लेकिन जिस तरह से आज 3 रैलियों से ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ी है, उसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि उन्होंने 3 स्पीचों में पहले जब शुरू किया तब कहा था चुनाव आयोग और बीजेपी का ये प्लान है, और जो खत्म किया है मालदा में उसमें कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि ये सारी षड्यंत्र यानी बाकी सारे लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री का और उनकी सरकार का और प्रशासन का कोई लेना देना, बाकी सब सारे लोग जिम्मेदार हैं, ये मान के चला जाए। एहतशामुल साहब, ये कौन लोग थे? और एहतशामुल साहब जरा ये बताइए कि जब राज्य की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि एसआईआर वाले जब आएंगे नाम आपके काट देंगे, घर में, रसोई घर में जहां जो हथियार मिले, बर्तन मिले, जो कुछ मिले उसको लेकर हमला करना है, इस तरह की भाषा अगर एक मुख्यमंत्री की होगी तो ऐसी घटनाओं का घटना स्वाभाविक नहीं कहा जाएगा? एहतशामुल साहब देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कल की जो घटना, जो 7 घंटा 8 घंटा मालदा के कालियाचक में या सुजापुर इलाके में जिस हिसाब से रास्ता के बीच में जो लोग थे, वो आक्रोश था लोगों का, इसलिए कि वो जितने भी लोग थे उनका एसआईआर के माध्यम से नाम काटा गया है, उनका कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए जनता कहाँ जाएगी? जनता रोड पर आकर करके अपने आक्रोश क्या है, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाबदेही जो है, यानी उन लोगों ने सही किया है एहतशामुल साहब, उन लोगों ने सही किया। देखिए ये हमारा राइट है, मौलिक अधिकार है, हम रास्ते पर उतर कर करके यहाँ देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान में, मालदा ही नहीं, मुर्शिदाबाद ही नहीं, ये पूरा देश में इस तरह से रास्ते पर उतर करके लोग आते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसी तरह से गाड़ियों को तोड़ते हैं, गाड़ियों पर हमला करके शीशे तोड़ते हैं, महिला न्यायिक अधिकारी बेचारी गुहार लगाती रहती है। लालचंद जी इसका सीधा सीधा जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग है, और इस तरह का आज देखिए इस तरह का जो घटना घटी है, इसका जो मेन जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा समझिए किया गया, और केंद्र सरकार के इशारे पर अगर इतने लोगों का नाम कहने का मतलब चुनाव आयोग सब कुछ संभाले और मुख्यमंत्री कहते रहे लोगों को कि हमला करो। लाल जी मैं तो समझ रहा था कि इस्तेमाल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और एक सभ्य की भाषा बोलते हैं, लोकतंत्र की भाषा बोलते हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि हमें शर्म होनी चाहिए, इसने बंगाल को शर्म किया है, वो तो कम से कम ये परसेप्शन तो बनाती है, आप तो चुनौती देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों के वोट कटेंगे, लोगों के वोट कटेंगे तो आप जजेस को डराएंगे? ये आप जो बता रहे हैं लोगों को, आप इस डेमोक्रेसी में धमका रहे हैं कि मालदा में 70% एक खास वर्ग के हैं तो जो चाहेंगे वो करेंगे। आप चुनौती दे रहे हैं राज्य को, आप चुनौती दे रहे हैं शासन को। देखिए एहतशामुल साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? एहतशामुल साहब आपने कहा देश भर में होता है, ऐसी तस्वीरें आती हैं, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। आप एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप चुनौती करने की बात है और आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग क्या करेंगे। देखिए विनोद जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सीधा सीधी, अरे आप तो थोड़ा शर्म नहीं कर पा रहे हैं महाराज, आप थोड़े से शर्म कीजिए। इसकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को कहना, आप लोगों के, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कह सकते हैं कि भाई कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और आप कह रहे हैं कि लोग करेंगे क्या, लोगों के वोट कटेंगे तो क्या वो जजेस को धमकाएंगे? और इस तरह तोड़-फोड़ करेंगे, बेशर्मी, बेहयाई की बात है। देखिए उन्होंने सड़क पर आकर के अपना आक्रोश किया है, इस तरह से आवाज उठाया है, इस तरह से। देखिए इस तरह का लोग कहां पर क्या करेंगे, सड़क पर जाकर के उन्होंने आवाज उठाई है। अरे वो जजेस को घेरे हुए थे, 7 जजेस को 8 घंटे तक बंधक बना करके रखा, फिर तोड़-फोड़। विनोद जी फिर तोड़-फोड़ देखिए किस तरह की है। बंधक बनाना सही नहीं है। आप लोगों को, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को लीड करते हैं और इस तरह की भाषा, आपकी बात क्या पूरी करवाएं एहतशामुल साहब, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए एहतशामुल साहब, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं घटना को।
मैंने इसकी ये जो घटना घटी है, इनको जो 7 लोगों को जो इस तरह का 7 घंटा तकीद किया गया, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, उसकी मैं निंदा करता हूँ। आप मजम्मत, अच्छा उसकी मजम्मत कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ना सही ठहरा रहे हैं क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतने लोगों का मालदा में, बंगाल का सबसे ज्यादा समझ लिए लोगों का नाम कटा है, तो 12 लाख लोगों का नाम कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी तो कटेगा। आप अपने प्रोसेस में जाइए, जुड़वाइए जाकर, कटेगा। डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी है इसलिए कटा है, कटेगा। इसके लिए तोड़ फोड़ करेंगे, इस तरह से बंधक बनाएंगे। डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, कोई में कोई कमी होगी तभी तो कटा है। क्यों कटा है उसका एक्सप्लेनेशन लीजिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट में आप, मतलब आप नहीं, मैं कह रहा हूं टीएमसी, जिसका आप समर्थन करते हैं, टीएमसी ही तो दौड़ दौड़ कर सुप्रीम कोर्ट गई थी। काम कर रहा है उसके लिए टीएमसी ही ना दौड़ दौड़ करके गई थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, करने दीजिए। लालचंद जी, मेरा डे 1 से हमारा अनुरोध है कि कोई भी लीगल वोटर जिसका सभी चीज है, सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कौशल कांत जी, कैसे ऐसे में, ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे लोग भयमुक्त होकर वोट डालेंगे? कौशल कांत जी। लालचंद जी, पूरा देश देख रहा है, आज चीफ जस्टिस ने भी देखा, आज का वो तो कल रात 2 बजे तक देखा उन्होंने, और जिस तरह से एहतसामुल हक बैठ करके यहाँ पर उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और उसका नतीजा क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अगर उसी प्रदेश की ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर रही हैं इतने सालों तक, उन्होंने ये कहा कि घर की औरतें अपने यहां से हथियार, मैंने उस बयान का हवाला दिया, ठीक, उसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया था स्टेज से कि अगर एक समुदाय के लोग अगर सड़क पे आ गए तो क्या होगा, अगर उनका नाम कट गया तो सड़क पर आ गए। तो कुछ नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी जानबूझकर ये कर रही हैं और उनके प्रवक्ता उन्हीं की लाइन टो कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। और केवल अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तब पूरे देश को सच्चाई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन पॉइंट्स को उठाती थी वो कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम का नारा है। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, हर 5 साल पे बदलती रहेगी, पर देश नहीं बदलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस लाइन पे चल रही है, उस लाइन से वो पश्चिमी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करें। आपको ये समझ है, काली चक्की जहां पर बात हो रही है, वहां पर 2011 का सेंसस ये कहता है कि वहां पे 89.29% में, परसेंट के साथ बता रहा हूं, 89.29% मुस्लिम है। कोई भी रहे, देखिए वो कहां से समुदाय के लोग भी रहे, किसी को ये करने का अधिकार नहीं है। एकदम लालचंद जी, हमें कब तक सबसे मतलब पर्दा डालते रहेंगे चीजों पर? भारत में कौन सा ऐसा देश हो सकता है जहां पर 90, अगर 2011 में 99.9% लोग हैं तो आज तो 100% होने वाले होंगे। वो कहां से आ गए? कैसे इतनी डेमोग्राफी चेंज हो गई? कहां से खरीद के लाए गए लोग? ये सिर्फ टीएमसी के बोए हुए सांप हैं जो वहां पैदा हो रहे हैं। और वो सांप कहां से आए? वो सौरभ दत्ता, राजनीति के इतर मुझे ये बताइए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, प्रधान न्यायाधीश ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस मामले पर बात की है, ग्रुप कॉल तक की है। न्यायिक लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर इस मामले में आगे क्या हो रहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट इसमें क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस ने ही आज एक रिपोर्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके चलते ही आज के सुबह अर्ली मॉर्निंग मेंशन होकर ये सारी बातें सामने आई है। और इधर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सीईओ गणेश कुमार अभी बैठक कर रहे हैं, राज्य पुलिस प्रशासन से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि आपका डीजी कोई नहीं गया, देर तक वैसे ही उनको रहने दिया। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों के साथ साथ एक क्रोनोलॉजी बार बार सामने आ रही है बंगाल की पॉलिटिक्स में। देखिए 9 मार्च वो दिन था जब यहाँ पे कमीशन का फुल बेंच आया था और ममता बनर्जी धन्ना मंच से कही थी कि 1 सेकेंड लगेगा एक समुदाय को एकजुट होने में। फिर जाके ये तो सीधा भड़काने वाली बात है भाई। लाल जी, फिर जब इस्तेहार पब्लिश हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि मैं अभी पावर में नहीं हूं, अगर कल जाके कोई दंगा हो जाता है, कोई अगर रायट होता है तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी। ये एक बार नहीं, 3 से 4 बार वो बोली है। और फिर जब ये कालिया चौक वाला इंसिडेंट हुआ
तब वो कहते हैं कि हम दंगा नहीं चाहते हैं। और वो खुद आज बोल रही है कि कल शुक्रवार है, लाल जी कल शुक्रवार है, कोई हंगामा ना हो। अरे शुक्रवार को हंगामा क्यों होगा? ये बात कहां से आ रहा है? ये सवाल भी है। जाहिर सी बात है विनोद जी, देखिए चुनाव आयोग ने अधिकारी बदल दिए, बड़े बड़े अधिकारी बदल दिए, भारी संख्या में तबादला कर। अब क्या करें? अब ऐसा क्या करें जो इस तरह की घटना ना घटे? विनोद जी। लाल जी देखिए, मुश्किल ये है कि अब ममता बनर्जी का गेम प्लान तो लोग जानते हैं। गेम प्लान यही है कि ममता बनर्जी अपने 15 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं भी इस चीज को चुनावी मुद्दा में नहीं बनाना देना चाहती। अब उनके कोई पूछे कि वहां जो 25,000 शिक्षकों की नौकरी गई वो कहां गई, उनको कोई पूछे कि ये जो गुलाबी नोटों की बौछार उनके मंत्री के घर से हुआ वो करप्ट मिनिस्टर का क्या हुआ, उनके कोई पूछे कि ये इतने सारे घोटाले, दर्जनों घोटाले की सीबीआई जांच हो रही है, उन घोटालों में क्या हुआ। तो ये जो ममता बनर्जी का पूरे 15 साल का जो बीजेपी का आरोप है एक लूट का, ये पूरा एक लूट का तंत्र बना हुआ था। उस लूट के तंत्र पे जब जनता सजग होने लगी है, जनता में बात आ रही है, ये मुद्दा बन रहा है, तो ममता बनर्जी शायद इस मुद्दे से अलग एसआईआर के इर्द गिर्द ही ये चुनाव कराना चाहती है। ये एक गेम प्लान है मालदा में, और ये मालदा में एक गेम प्लान है कि पूरा बंगाल का इलेक्शन सिर्फ एसआईआर पे कंसंट्रेट करे, और एसआईआर के इर्द गिर्द ममता बनर्जी पोलराइज करा रही है, जिसके लिए जो चुनाव में थ्रेट अभी कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, ओवैसी साहब, ये सारे लोग जो उतरे थे, मालदा ने उनको कम से कम ये बता दिया है कि ममता ही है इस कम्युनिटी का। ठीक है एहतशामुल साहब, पूरा गेम प्लान यही है, पूरा गेम प्लान यही है कि अलग अलग बयान देकर लोगों को भड़काया जाए, एसआईआर के मुद्दे को उठा करके बाकी मुद्दों को छुपाया जाए। लालचंद जी, सच बात आपके चैनल के माध्यम से सामने आ गया। आपके संवाददाता सौरभ दत्ता ने आपके साथ सभी लोगों के बीच में कहा है कि ये जो घटना घटी है उसका मुख जो था वो आईएसएफ का कैंडिडेट था। इस चीज से हमें जानकारी बाद में हुई, हमारी मुख्यमंत्री कह रही है ये पूरा समझ लिया आईएसएफ के लोग थे, लेकिन हमारा इस हिसाब की जो घटना कल घटी है, सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव आयोग 58 लाख लोगों का नाम समझिए यहाँ पर एडजुडिकेशन में ये सिद्ध करे, ये क्लियर करे, लोग आक्रोश में क्यों रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का भी तो नाम ले रही है सीएम ममता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी नाम ले रही थी, उनका भी नाम ले, सबका नाम ले रही है। कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी कह रहे हैं आईएसएफ वालों ने किया, कांग्रेस वालों ने किया। लालचंद जी, सौरभ दत्ता जी ने जो स्टेटमेंट्स बताए, मैं उसी की बात कर रहा था। वो केवल और केवल अराजकता फैलाना चाहती हैं, जिससे जो बंगाल का शांत प्रिय वोटर है वो वोट देने ना जाए और इनके गुंडे वोट दें। आप सोचिए 5 साल की बच्ची के साथ एक जुडिशियल ऑफिसर क्या कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हाईकोर्ट मेरे बच्चे की वो ऑडियो हमने सुनवाई, वो आप सोचिए इस तरह का माहौल बना करके केवल और केवल वो ये मैसेज दे रही पूरे बंगाली भाइयों को जो शांत प्रिय हैं कि आप लोग अगर वोट देने निकले तो आपका यही हाल करेंगे टीएमसी के गुंडे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देश की सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश वो चुनौती महसूस कर रहे हैं आज के दिन कि कैसे वहां पर चुनाव होगा, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कैसे हिंसा रुकेगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का भाग लेने के लिए। कौशल कांत मिश्रा जी, एहतशामुल साहब, सौरभ और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे असम के चुनावों की, कैसा चल रहा है असम का प्रचार। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पर हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है।
हमारी जनगणना हमारा विकास। जिस असम में पहले कभी बात होती थी रीजनल पार्टीज की, यानी क्षेत्रीय ताकतों की, क्या वो अब एक साए में आ गई हैं? क्षेत्रीय पार्टियां कहाँ खड़ी हैं? कि असम गण परिषद, और वो जानता है कि असम का एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए उसको अभी प्रोग्रेसिव रीजनलिज्म का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा। बीपीएफ का मोटो ये क्लियर है, स्टेट और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगा उनके साथ हम लोग मिलजुल के बीटीसी को डेवलप करने के लिए, 6 शेड्यूल को डेवलप करने के लिए जो करना है हम लोग करेगा। हिमंतो बिस्व शर्मा एक बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। Mr. Sharma is a popular person in Assam. He is a popular man. He could regain his popularity by doing so many things. चलते इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह असम के नौगांव में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। के लिए आपने क्या किया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 असम में कांग्रेस सरकार रही, ऊपर भी मनमोहन जी की सरकार थी, नीचे भी कांग्रेस सरकार थी। असम के विकास के लिए क्या दिया? सिर्फ 1,28,000 करोड़। असम ने देश को प्रधानमंत्री दिया और वो प्रधानमंत्री ने असम को सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपए। जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने यही 10 साल में 14 से 24 में 9,78,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 1,35,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 30,000 करोड़ से सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ से रेलवे, 10,000 करोड़ से एयरपोर्ट, 9 मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और लाखों करोड़ों रुपए का असम में इन्वेस्टमेंट लाने का काम हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 22,000 करोड़ का मेघालय से असम का रोड बनाया, 18,000 करोड़ से गोहपुर नुमालीगढ़ कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड बनाया, भारतमाला परियोजना 443 किलोमीटर रोड बनाया, 3700 किलोमीटर ग्रामीण रास्ते बनाए, एशिया का सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज जिस पर रेलवे और गाड़ी दोनों जाता है, वो बनाने का काम यही समय में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी फुलवाड़ी पर 5,000 करोड़ का ब्रिज बनाया, ढोला सदिया पुल 2,000 करोड़ का, और गुवाहाटी की दोनों ओर ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाला 6 लेन का ब्रिज बनाने का काम हमारा चल रहा है। जल मार्ग बनाए, पर्यटन के लिए कई काम करे, और मोदी जी 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भारत का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना हमारे असम के अंदर लेकर आए। मित्रों, असम के अंदर असम कौशल विद्यालय की स्थापना, तुमुलपुर में धुबरी मेडिकल कॉलेज 188 करोड़ से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र डिब्रूगढ़ में
122 करोड़ से पत्थरकंडी कृषि महाविद्यालय और 1100 करोड़ से 750 बिस्तर वाला एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने आसाम में IIM भी बनाया और सबसे बड़ी बात, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर बटद्रवा स्थान में पुनः विकास योजना 222 करोड़ खर्च कर एक विशाल सत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस धुआंधार प्रचार चल रहा है। इस समय सीधे गुवाहाटी चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये सब काम क्यों हुआ? इस काम का श्रेय मुझे नहीं है, इस काम का श्रेय हेमंत जी को नहीं है, इस काम का श्रेय मोदी जी को नहीं है। इस काम का अगर श्रेय है तो मेरे सामने बैठी हुई आसाम की जनता को है। अगर हम आप को अगर चुनकर ही नहीं देते तो हमारी सरकार नहीं आती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मैं नेशनल हाईवे का मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से करता? यह आपके समर्थन के कारण, आपके विश्वास के कारण आसाम की तस्वीर बदल रही है। आसाम में उद्योग व्यापार क्षेत्र में हम विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ब्रह्मपुत्रा को बाढ़ मुक्त करने का भी हमने संकल्प किया और आने वाले समय में आसाम के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे। हम आसाम की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और इसीलिए मैं आज आपके पास ये अनुरोध करने के लिए आया हूं। ये हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हिमांशु शेखर कमल के फूल का निशान लेकर खड़े हैं। 100 बीमारी का एक ही इलाज है कि कमल के फूल की बटन दबाइए और चमत्कार देखिए। आपकी सब समस्याएं हम पूरी करके दिखाएंगे और आसाम को हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाएंगे। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के विरोध में नहीं है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे देश में जो विदेशी नागरिक आते हैं बाहर के देश से, क्या उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए? क्या उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए? और वो यहां आगे आएंगे तो आपका क्या होगा? और इसलिए हमारे संविधान ने मार्गदर्शन किया है कि जो विदेशी नागरिक आएंगे उसमें से जो सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, वो निर्वासित है और उनके लिए कोई देश नहीं है। और जो बाकी विदेशी नागरिक है वो गैर कानूनी रूप से हमारे देश में नहीं आ सकते। असम में सिर्फ 7 दिन बाद मतदान है, इसलिए प्रचार धुआंधार चल रहा है। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिस असम में